Hello students, in today's class we will see that is electric potential due to electric dipole. Okay, now this is quite big derivation we will see. Now see, for this we will require the diagram, and this is your diagram in which you are observing that there is two dipoles. Okay, dipole means what? Having the two charges. So this is the charge, positive charge Q, this is the negative charge Q at the point A, and this is at the point B. Okay, now this is the center O. If we are consider that we are passing through the line from the two dipole, that is the axis of the dipole, this is your center. Now this is the point C, which is near to the dipole, and we are taking that is the distance from center to the point C, that is the distance is R, and here that is the distance from point C to the charge Q, positive charge Q, the distance is R1. Similarly, here is that is the point from point C to the negative charge, the distance is R2. Okay, now this is the explanation you have to give for this diagram. Now see, here we are taking some point. Okay, at this we are taking the point, and through this point we are draw the perpendicular. Now this OC, it is make an angle theta, that means it is inclined with the axis of the dipole. ये near about तुम्हारा description होगा. Okay, how we will, once again I will read this. That is, consider an electric dipole. Consider an electric dipole. Let origin be the center. इसका जो center दिख रहा है of the dipole as shown in the figure. Let C be the any point near the electric dipole. डायपोल के पास में तुम्हारा C पॉइंट है at a distance R. कितना डिस्टेंस है? R. इस O से लेके C तक तुम्हारा डिस्टेंस है, दैट इज द R, फ्रॉम द सेंटर O, इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा. कितना एंगल थीटा बना रहा है? दैट इज द एंगल थीटा विद द एक्सिस ऑफ द डायपोल. Okay, next I told you that is the R1 and R2, it is distance from the point C to the, that is the charge Q and the minus Q. So let R1 and R2 be the distance of the point C from the charge, positive charge Q and the negative charge Q respectively. तो ये करीब करीब तुम्हारा डिस्क्रिप्शन का. व्हाट इज द नेक्स्ट? डिस्क्रिप्शन होने के बाद में वी हैव टू फाइंड आउट द, दैट इज द पोटेंशियल. सी, द फर्स्ट स्टेप we have to write down the diagram. After that diagram you have to give the complete description of that diagram. Next, what he is saying, that is the potential, that is potential at point C due to the charge Q. इस Q की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? सो वी विल टेक दैट इज द V1, इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. कितना होगा? Q अपॉन डिस्टेंस इज द R1. ओके, नेक्स्ट, दैट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट C. फिर से इसी C पॉइंट पे हम लोग पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ द चार्ज minus Q. So we will take that is the V2, it is equal to 1/4 pi epsilon 0 Q, कितना होगा? minus Q, and the distance is the R2. Okay, now we have to find out again that is the potential at the point C due to the dipole. Now due to the dipole, so we will write down that is a total V, it is equal to V1 plus V2. कितना हो जाएगा? V1 प्लस, हम दोनों को इसका एडिशन में डायरेक्ट स्टेप लिख रही हूँ, इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और दोनों में चार्ज Q कॉमन है तो वो भी हम लोग बाहर निकाल देते. यहाँ पे क्या रहेगा? 1 माइनस R1 एंड 1/R1 एंड माइनस 1/R2. ओके, हैव यू अंडरस्टैंड अप टिल दिस? सो वी विल सी दैट यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है द पोटेंशियल एट द C ड्यू टू द चार्ज Q. इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमको कितना मिल रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1, इट इज़ द
only q and the r1 because it is only q, and here because of the point minus q we are getting that is the 1 upon 4 pi epsilon 0 minus q upon r square. Okay, next अब हमको क्या देखना है, we have to find out that is the total. So at this particular point, because of this dipole, so we have written that is Vt is equal to V1 plus V2, it is equal to Q upon 4 pi epsilon 0 1 upon R1 minus 1 upon R2. Okay, this is the next step. Now अब क्या बोल रहा है, इतना हम लोगों ने कर लिया. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नाउ वी हैव टू कंसीडर द फर्स्ट ट्रायंगल. ठीक है, पहला हम लोग ये ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं. नाउ बिकॉज ऑफ दिस ट्रायंगल वी विल ऑब्जर्व दैट क्या हो रहा है, हमारा ट्रायंगल क्या करेगा. सी हियर द ट्रायंगल दैट इज ए, दिस इज द पॉइंट डी, ए डी ओ, ये हमने ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल. तो बिकॉज ऑफ ए डी ओ नाउ वी विल टेक दिस इज द इंक्लाइंड एंगल थीटा. इससे हम लोगों को क्या फाइंड करना है, दैट इज द साइन थीटा. साइन थीटा वी नो दैट क्या है साइन थीटा, दैट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. नाउ इसका अपोजिट कितना होगा, दिस वन अपॉन हाइपोटेनियस मतलब दिस वन. सो दैट इज द ए डी डिवाइडेड बाय ए ओ. ओके, हैव यू अंडरस्टैंड दिस. तो हमको ए डी फाइंड करना है, तो ए डी इट इज इक्वल टू मिलेगा ए ओ साइन थीटा. अब ए ओ मतलब कितना है, सी हियर ए ओ दैट इज द एल, बिकॉज द कंप्लीट इट इज द ट्वाइस एल, तो वी विल राइट डाउन दैट इज द एल साइन थीटा. हैव यू अंडरस्टैंड टिल दिस. नाउ नेक्स्ट सिंपल, इससे आप लोगों को साइन थीटा अप्लाई करना है. अगेन वी विल अप्लाई हियर दैट इज द कॉस थीटा. अब हम लोग कॉस थीटा अप्लाई कर रहे हैं. नाउ हियर इसी ट्रायंगल पे हम लोग कॉस थीटा अप्लाई करेंगे. अब कॉस थीटा, यस कॉस थीटा अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वी ऑल ऑफ यू नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला. पहले इसमें क्या था, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. यहाँ पे क्या है तुम्हारा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. अब इसका एडजेसेंट कितना है, दैट इज द ओ डी. सो वी विल राइट डाउन दैट इज द ओ डी एंड डिवाइडेड बाय दैट इज द ए ओ. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या मिल रहा है हम लोगों को, हमको ओ डी फाइंड करना है. तो ओ डी इट इज इक्वल टू ए ओ एंड द कॉस थीटा. ए ओ मतलब कितना हो रहा है, ए ओ, तो इट इज़ अ एल कॉस थीटा. तो हमको एल कॉस थीटा मिला. यहाँ पहले इसमें हमको जब साइन लेते हैं तो एल साइन थीटा, यहाँ पे हमको एल कॉस थीटा. हैव यू अंडरस्टैंड, दिस इज अवर फाइंड आउट, वी हैव फाइंड आउट दैट इज द sin theta and cos theta by using the first triangle. Okay, now we will see that the next step. अब next step में क्या कर रहे हैं हम लोग, ये दूसरा ट्रायंगल जो दिख रहा है उसका यूज़ करेंगे. यहाँ आप लोगों को दिख रहा है कि this is a triangle having one angle, it is a right angle. Now in this case we will apply the Pythagoras theorem. Pythagoras theorem अप्लाई करेंगे तो Pythagoras theorem के लिए क्या होगा, that is the AC स्क्वायर इट इज इक्वल टू क्या होगा, सी डी प्लस ए डी. स्क्वायर स्क्वायर आएगा, वही हम लोग लिख लेते हैं अभी, दैट इज द R1 स्क्वायर इट इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस दैट इज द सी डी स्क्वायर. ओके, अब ये सी डी स्क्वायर लिख लिए यहाँ पे सी डी. अब हमको सी डी चाहिए, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर. अभी सी डी स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, सी फ्रॉम सी टू ओ वी हैव द डिस्टेंस आर. ठीक है, नाउ सी पहले हम लोग लिख लेते हैं दैट इज द ओ सी माइनस ओ डी. ओके, यहाँ से इसमें से हम लोगों ने इतना माइनस कर दिए तो हमको सी डी मिलता है. अब ए डी हम लोगों ने अभी ए डी फाइंड किया है. ए डी कितना मिला हम लोगों को, ए डी इट इज़ इक्वल टू एल साइन स्क्वायर थीटा, एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ओ सी माइनस ओ डी स्क्वायर. ओके, नाउ ओ सी माइनस ओ डी स्क्वायर. ओ सी मतलब कितना है हमारे पास में, दैट इज़ द आर. ओ सी इट इज़ द आर हो गया, माइनस ओ डी मतलब कितना मिल रहा है हम लोगों को, अभी हम लोगों ने फाइंड किया दैट इज़ द ओ डी इट इज़ इक्वल टू एल कॉस
थीटा, इसका पूरा स्क्वायर ले लेंगे। ओके, अब यहाँ पे आप लोग देखोगे पूरा स्क्वायर लेने के बाद में यहाँ मैंने लिखा दैट इज़ ए डी की वैल्यू एल स्क्वायर, ए डी की वैल्यू है एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको हम लोग अभी a माइनस बी होल स्क्वायर मैथमेटिकल फॉर्मूला वी विल अप्लाई हियर। तो ओ सी की वैल्यू कितनी है, ओ सी मतलब कितना r माइनस एल कॉस थीटा, ओ डी अभी हमने देखा ओ डी एल कॉस स्क्वायर, सारे वैल्यूज़ है सब कुछ डाल दिया। सिर्फ आप लोगों को अभी सिंपल तो ये एज इट इज़ टर्म एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई करना आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस आर एल कॉस थीटा प्लस कितना हो जाएगा ये एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। ओके, अब इसमें से हम लोग देखेंगे कि आर स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है एल स्क्वायर, यहाँ पे भी एल स्क्वायर, पर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को देखें तो एल स्क्वायर और ये हमने ब्रैकेट में डाल दिया है। ओके, फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है, दिस इज़ द माइनस ट्वाइस आर, दिस इज़ द माइनस ट्वाइस आर एल कॉस थीटा। ओके, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास माइनस टर्म है तो पहली टर्म तुम्हारी माइनस में आ रही। ओके, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इट विल बी 1। तो हमको क्या मिल रहा है नेक्स्ट, वी आर गेटिंग दैट इज द आर वन स्क्वायर इट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस ट्वाइस आर एल कॉस थीटा। ओके, सिमिलरली अभी क्या करना है हम लोगों को, R2, हमारा फॉर्मूला ही दिख रहा है कि हमको R1 और R2 चाहिए है, तो अब हम लोगों को R1 स्क्वायर मिला है, R1 स्क्वायर मिला है। वैसे ही हम लोग अभी R2 स्क्वायर सिमिलरली करके डायरेक्टली यू हैव टू राइट डाउन। अगर हम लोग निकालते हैं तो आपको ये ट्रायंगल यूज़ करके निकालना है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं दैट इज़ R2 स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस ट्वाइस आर एल कॉस थीटा। पहले इसमें क्या आ रहा तुम्हारा a माइनस बी, पर यहाँ पे क्या लगाते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। हो गया, यहाँ तक हम लोगों को समझ गया। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, सी हियर, यहाँ पे हम लोग आर स्क्वायर कॉमन टर्म निकाल लेते, आर स्क्वायर हमें कॉमन निकाल दिए, R1 स्क्वायर तो एज इट इज़ है, आर स्क्वायर हमने कॉमन निकाल दिया, मतलब यहाँ पे क्या बच रहा है 1 प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, सी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस आर एल कॉस थीटा, और फिर से यहाँ पे डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, आर स्क्वायर नीचे में ऊपर में आर, तो ये कैंसिल हो रहा है। ओके, तो हमको नेक्स्ट स्टेप क्या मिल रही है, R1 स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर इन द ब्रैकेट 1 प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर। ओके, वैसे ही फिर आप लोगों को सिमिलरली करके डालना है, तो क्या मिलेगा, R2 स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर इन द ब्रैकेट 1 प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस एल कॉस थीटा आर। ओके, गेटिंग यू। तो पहले आप लोगों को माइनस का फॉर्मूला लगाना, a माइनस बी, और दूसरे इसमें a प्लस बी। हो गया। अब नाउ कंसीडर फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, ये जो हमारे पास में दिख रहा है डाइपोल, तो इसकी लेंथ हम लोग क्या कर रहे हैं, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द आर। इस आर के कंपेरिजन में हमको इसको बहुत छोटा एज्यूम करना है, इसको छोटा एज्यूम कर रहा है, मतलब क्या हो रहा, आर इट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एल एंड दैट्स वाई एल अपॉन आर इज़ स्मॉल। फिर हम लोग यहाँ बोल रहे हैं कि इस वजह से एल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड। तो यहाँ पे आप लोगों को एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर जो दिख रहा है वी कैन निगलेक्टेड, हम उसको निगलेक्ट कर सकते। तो हमारे पास में R1 स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर है इन द ब्रैकेट 1 एंड दिस इज़ द निगलेक्टेड टर्म, तो हमने इसको छोड़ दिया। क्या बचा, नेक्स्ट इज द माइनस ट्वाइस एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर। गेटिंग, ये स्टेप समझ में आ गए आप लोगों को। सिमिलरली फिर R2 के लिए सिमिलरली हमेशा यू हैव टू राइट डाउन। तो R2 स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू आर, सिर्फ आपको साइन देखना है, पहले इसमें माइनस वाई बिकॉज वी आर अप्लाइंग a माइनस बी होल स्क्वायर। तो आप लोगों को यहाँ पे ये टर्म मिल रही है, यहाँ पे ये टर्म। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, सी अभी हमारे पास में R1 स्क्वायर मिला था,
ठीक है। अब हमको एक्चुअली हम लोगों को क्या चाहिए, वी नीड दैट इज़ द 1/R1, सिर्फ R1 की वैल्यू हमको चाहिए। अब ये जो कर रहे हैं हम लोग सिर्फ R1 फाइंड कर ले। अब हमारे पास में पीछे में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हमको R1 स्क्वायर है, R2 स्क्वायर है। अब हमको स्क्वायर रिमूव करना है। स्क्वायर रिमूव करने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, ये स्क्वायर है, इसको सब तीनों टर्म को हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई किया, इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई किया और इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई किया। अब क्या हो रहा है, 2 गेट कैंसिल, यहाँ पे भी 2 कैंसिल हो गया, पर यहाँ पे टर्म क्या बची, 1/2। ओके, अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, दिस इज R1 इक्वल टू R इन द ब्रैकेट 1 माइनस ट्वाइस LR cos थीटा। ओके, और दिस इज द हाफ। गेटिंग, सिमिलरली करके आप लोग R2 पुट कर दोगे। गेटिंग, नेक्स्ट इसके बाद में क्या करना है हम लोगों को, क्या चाहिए हमको फॉर्मूले में 1/R1। अब हम उसको अरेंज करेंगे 1/R1 में। तो 1/R1 तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरी टर्म है डिनोमिनेटर में डाल देते हैं। तो हम 1/R1 इट इज़ इक्वल टू 1/R इन द ब्रैकेट वी विल टेक, पूरे ब्रैकेट में ये क्या हो रही तुम्हारी, दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ट्वाइस LR cos थीटा। और ये क्या है तुम्हारे पास में, दैट इज़ द 1/2। ओके, अब ये देखो सारी टर्म्स ये है एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, पर ये क्या हो रहा है, जो हाफ टर्म है हमने उसको ऊपर लेके लिए। ऊपर लेने के बाद में इट विल बी माइनस, ये हो गई तुम्हारी माइनस टर्म। वैसे ही हम लोगों ने R2 के लिए किया है। ये जो R2 है तो हमने इसको 1/R2 कर दिए, यहाँ पे 1/R कर दिए। नेक्स्ट ये जो तुम्हारे पास में टर्म है 1 प्लस ट्वाइस LR cos थीटा एंड दिस इज़ द हाफ। तो इसको नीचे लेने के नहीं, तो नीचे लेने के बाद में क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास में 1/2 है। नीचे लेने के बाद फिर हम लोग 1 से रिमूव कर रहे तो ऊपर लेके जा रहे तो इट विल बी माइनस 1/2। ओके, ये जैसा है वैसा ही हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड कर लिए। गेटिंग, नेक्स्ट व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, see student, it is a quite lengthy derivation, so we have seen that is the next step, it is equal to VC। क्या है फॉर्मूला हमारे पास में, that is the center V, it is equal to V1 plus V2, it is equal to Q 4πε0, it is a common 1/R1 minus 1/R2। अभी हमारे पास में 1/R1 और 1/R2 we got it। ओके, बट स्टिल अभी यहाँ पे क्या है, माइनस हाफ, और यहाँ पे भी तुम्हारे पास में क्या है, माइनस हाफ है। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज़ द बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम में व्हाट इज, जैसे हम लोगों ने इंटीग्रेशन में वगैरह देखा है, इंटीग्रेशन टू द पावर एक्स फॉर्मूलेज देखे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के, वैसे ही बाइनोमियल थ्योरम के लिए फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन। तो x इट विल बी एज इट इज़। अब यहाँ पे देखो जो सेकंड टर्म है उसका जो पावर दिख रहा है, तो पहले पावर आ गया माइनस एन, ये माइनस एन आया, और जो नेक्स्ट टर्म है इट विल बी एज इट इज़ प्लस हायर टर्म निग्लेक्टेड। ओके, दिस इज़ द बाइनोमियल थ्योरम। अब ये थ्योरम हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को लगाना है, यहाँ और यहाँ इस टर्म में माइनस हाफ और ये माइनस हाफ में। ओके, नाउ सी क्या टर्म है हमारे पास में, 1 माइनस ट्वाइस LR cos थीटा, और पावर कितना है, माइनस 1/2। अब इसको बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं तो इट विल बी 1 माइनस, इट इज़ ये माइनस है। ओके, नेक्स्ट वी विल इन द ब्रैकेट वी विल टेक माइनस 1/2, ये माइनस 1/2 हो गया। फिर ये पूरी टर्म इट विल बी एज इट इज़, गेटिंग प्लस हायर टर्म। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो रहा है, ये 2 कैंसिल हो रहा है, 1 माइनस माइनस प्लस L cos थीटा R। ओके, समझ में आ गया। यहाँ पे है 1 माइनस माइनस प्लस हो रहा, 2 कैंसिल हो गया है, तो L cos थीटा डिवाइडेड बाय R। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड टिल दिस। ऐसा ही हम लोगों को क्या करना है, सिमिलरली करके दूसरे टर्म के लिए करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट वही है तुम लोग, दैट इज़ 1 प्लस, यहाँ पे प्लस का है लेकिन पावर कितना है, माइनस 1/2, तो ये माइनस 1/2 और ये पूरी टर्म एज इट इज़। यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, और फिर हमको क्या मिल रहा है, 1 ये
प्लस माइनस का क्या हो जाता है माइनस एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर। ओके, तो हमको ये टर्म और ये टर्म मिल चुकी। नाउ सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज, अब हम लोग सब्सटीट्यूट कर रहे हैं वैल्यूज। वी हैव v1 प्लस v2 इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे देखें हमने v1 प्लस v2 इट इज़ इक्वल टू q अपॉन 4πε0, q अपॉन 4πε0। नेक्स्ट क्या है, दैट इज इन द ब्रैकेट r1 की वैल्यू, r1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, यहाँ पे देखें हम लोगों ने कितनी है, दैट इज 1 अपॉन r। तो हमने 1 अपॉन r, लेकिन यहाँ पे हमको क्या मिली टर्म, इस टर्म के लिए हमको मिला है इन द ब्रैकेट 1 प्लस एल कॉस थीटा। ओके, नेक्स्ट माइनस, ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों के पास में क्या है, ये माइनस, तो हम लोगों ने माइनस टर्म एज इट इज़ रखा। नेक्स्ट उसके बाद में क्या है, यहाँ पे आप लोग 1 अपॉन r2, अब r2 की वैल्यू, तो 1 अपॉन r2 की वैल्यू मतलब कितनी है, अगेन 1 अपॉन r, तो ये 1 अपॉन r, इट विल बी 1 अपॉन r, ठीक है। और 1 अपॉन r निकालने के बाद में ये जो टर्म है, इस टर्म की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की है, तो कितना मिला हम लोगों को, दिस वच, दैट इज़ 1 माइनस, ओके, तो ये लिखा हमने 1 माइनस एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय r। हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दिए, सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, q 4πε0, ओके, इन द ब्रैकेट, पहला 1 अपॉन r, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो 1 अपॉन r मिला। नेक्स्ट यहाँ अंदर जा रहा है, तो इट विल बी एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट माइनस साइन, तो माइनस साइन है, अब ये टर्म अंदर जा रही है, तो इट विल बी 1 अपॉन r, ठीक। अब यहाँ पे माइनस माइनस इट विल गेट प्लस, तो ये हो गई तुम्हारी प्लस टर्म। यहाँ पे फिर हमारे पास में क्या, ये 1 अपॉन r इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा, तो प्लस होके एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ओके, हैव यू अंडरस्टैंड टिल दिस। अब पूरे हम लोगों ने डाल दिए, यहाँ पे प्लस और ये माइनस 1 अपॉन, इट विल गेट कैंसल, हमारे पास में क्या बच रहा है, q अपॉन 4πε0 इन द ब्रैकेट, ये एक टर्म दूसरी टर्म, ओके, तो वी विल राइट डाउन ट्वाइस एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। गेटिंग, नेक्स्ट आप लोगों को टेलिंग यू दैट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, सो वी विल राइट डाउन p, इट इज़ अ फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, सो इफ़ यू आर टेकिंग 1 चार्ज, हमारे पास में कितना है 1 चार्ज, वी आर टेकिंग 1 चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है, दैट इज द ट्वाइस एल, दैट्स वाई वी आर अप्लाइंग दैट इज द p, इट इज इक्वल टू q इंटू ट्वाइस एल, तो ये q और ट्वाइस एल, उसके लिए हम लोगों ने लिखा है दैट इज द p, रिमेनिंग इट इज अ cos थीटा एंड डिवाइडेड बाय 4πε0 एंड r स्क्वायर। एंड विद दिस स्टूडेंट, this is your complete derivation for the electric potential due to electric dipole. Okay, so student, we got value, that is the v, it is equal to p cos theta divided by 4πε0 r square. So this is your value, that is the total value v. Now in this case you will find that there is the two case. First case, in our diagram you will see that this point, suppose it is on the axial, okay, when it is at the axial, at that time what will happen, angle will be 0, एक तो 0 होगा या तो फिर 180 डिग्री, और दोनों के लिए क्या हो जाएगा तुम्हारा, दोनों के लिए सपोज वी आर टेकिंग दैट potential at an axial theta it is equal to 0 और 180 डिग्री। ओके, सो हम लोगों को वैल्यू मिल रही है v, इट इज इक्वल टू प्लस माइनस, वाई, बिकॉज cos 0 इक्वल टू पॉजिटिव 1 एंड cos 180 डिग्री इट इज अ -1, सो v इट इज इक्वल टू प्लस माइनस p डिवाइडेड बाय 4πε0 r स्क्वायर, एंड दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल वैल्यू। नाउ सेकंड केस, व्हेन c एट द इक्वेटर, हमने देखा कि जब वो इक्वेटर में है करके, एट द इक्वेटर, एट दैट टाइम द डिग्री विल बी द 90 डिग्री, तो हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया 90 डिग्री, तो वी आर गेटिंग v इट इज इक्वल टू 0, सो द पोटेंशियल विल बी द मिनिमम वैल्यू। सो दिस इज योर स्टूडेंट, दिस इज योर कंप्लीट डेरिवेशन, यू कैन सी वंस अगेन, दिस इज योर, ओके, नेक्स्ट पेज, see this is your next page, getting,
Then this is your third page. You can see once again at home. ठीक, उसके बाद में है आपका नेक्स्ट पेज. उसके बाद के स्टेप्स आएंगे यहाँ पे. ठीक है, ये पूरा बायनोमियल थ्योरम हम लोगों ने अप्लाई कर दिया. उसके बाद में नेक्स्ट आएगा यहाँ पे ये कंप्लीट. लास्ट में हमको v वैल्यू मिल रही है, v की वैल्यू. v वैल्यू डालने के बाद में फिर आगे में हम लोगों को 2 केसेस अप्लाई करना है. सो ये 2 केसेस अप्लाई करेंगे, फर्स्ट केस एंड द सेकंड केस. एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड, दैट इज़ द होल डेरिवेशन.